Hey guys, welcome back to our new video. Here we can discuss bullish Marubozu candlestick pattern, how it forms, how to trade bullish Marubozu in 5 minute time frame, 10 minute time frame, daily time frame, what is and its important entry, exit, targets, and proper stop loss. Now, what is Marubozu and how it look like? Firstly, let's assume when a stock opens at 10 rupees. Let's assume a stock open at 10 rupees here, and it made a low which is 9.5, and its high is like 15 rupees, and it closes at 14 rupees, and it closes as 14 rupees. Now in this case, when stock low point and ओपन प्राइस सेम होगा, तो व्हेन स्टॉक का लो प्राइस यानी ऑलमोस्ट 9.5 to 10 लो प्राइस एंड ओपन प्राइस सेम होगा, और उसका हाई प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम होगा, देन तो हमारा मारुबुजू होगा. नाउ लेट डिस्कस. नाउ दिस इज आवर मारुबुजू shape. In mostly cases, Marubozu has no wick. In mostly cases, in some cases, Marubozu has no wick, and in mostly cases, Marubozu has small wick. In this case, you can assume that a stock opens, let assume at 10 rupees. Stock open at 10 rupees, and its low is 9 rupees, and its high can assume is 20 rupees, and it closes here which is 18 rupees. In this case, opening price is our 10, and lowest point is our 9, and highest price is 20, closing price is 18. When opening price and lowest point of the candle is same, and highest point and closing price is same, and it is called Marubozu. Now Marubozu has two types, open Marubozu and close Marubozu. Let's discuss open Marubozu and close Marubozu. When a wick is like this is open Marubozu. In some of the cases, Marubozu has a little wick. This is our open Marubozu, and this is our close Marubozu. In mostly cases, we find open and close Marubozu. Full Marubozu is very rare. In very less cases, full Marubozu found. Now let's discuss with a chart example. Now, in this case, you can see this is a full Marubozu. This is open Marubozu because it has open from the upper side. It is called open Marubozu. And in this case, close in upper side, it is close. This is open Marubozu, and this is close Marubozu. Now, let's discuss charts. In 5 minutes, how to trade
bullish Marubozu in 5-minute time frame. In Nifty or Bank Nifty, how we can trade bullish Marubozu? In 5-minute time frame, there is at least 6 to 7 candles downtrend. In 5 minutes, there is a 6 to 7 candles downtrend. Then after a Marubozu formed this. Now in this case downtrend का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वो मारुबुजू का सबसे लोवेस्ट पॉइंट ना हो तो चल जाएगा, बट इन प्रीवियस वीडियो वी टॉक इन हैमर पैटर्न और इन बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की डाउन ट्रेंड का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है जो हैमर की वीक या बुलिश एंगल्फिंग की वीक होनी चाहिए। बट इन मारुबुजू के केस में ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि भाई डाउन ट्रेंड का सबसे लोवेस्ट पॉइंट मारुबुजू ही होना चाहिए। इससे प्रीवियस कैंडल भी हो डाउन ट्रेंड का सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगी तब भी कोई इशू नहीं है। अगर ये बुलिश डाउन ट्रेंड का सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे ही मारुबुजू बना तो बेस्ट है, जैसे कि इस केस में बना हुआ है कि सबसे लोवेस्ट पे बना हुआ है। बट अगर प्रीवियस कैंडल जैसे इसकी वीक यहाँ पे बड़ी होती देन फिर भी हमें ये हमारा मारुबुजू होता है, इसको हम ट्रेड करते हैं। Now we discuss entry and stop loss. Our stop loss is मारुबुजू का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, ये चीज़ें मारुबुजू की ओपनिंग प्राइस है उससे 10 to 15 पॉइंट्स नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे। और जो स्टॉप लॉस है मारुबुजू का ये हमारा स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। When our stop loss hit, the downtrend continue very fast. Now हमें इसमें स्टॉप लॉस को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एंट्री कहाँ पे करेंगे? फॉर एंट्री when मारुबुजू closes and above the high and क्लोजिंग प्राइस, जब अपनी क्लोजिंग प्राइस के हाई पे ट्रेड दोबारा से ट्रेड करने लगेगा देन हम इसमें एंट्री कर लेंगे। इन सम केसेस मारुबुजू की जो प्रीवियस 2 to 3 कैंडल्स के हाई है हम उस पर एंट्री करेंगे। लेट्स से कि जो हमारी मारुबुजू कैंडल है वो हमारी बहुत बड़ी कैंडल बन गई है तो हम उसी के आई पे ट्रेड ले लेंगे। इन दिस केस से 6 कैंडल का डाउन ट्रेंड है एंड अब हमारा यहाँ पे मारुबुजू हैपन। अगर ये पिछली प्रीवियस 2 to 3 कैंडल्स यानी ये काफ़ी बड़ा मारुबुजू बन गया, जो प्रीवियस 2 to 3 कैंडल्स है वो कंप्लीटली एंगल्फ हो जाएंगे इसमें, तो हम मारुबुजू के ऊपर ही एंट्री ले लेंगे, मारुबुजू के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। बट इन अदर केसेस व्हेन मारुबुजू कैंडल इज स्मॉल, नाउ देन हम एंट्री कहाँ पे लेंगे वी डिस्कस। जो हमारी रेड कैंडल्स है वो सपोज करो हमारी बड़ी हैं और हमारा जब मारुबुजू है वो छोटा है, मतलब स्मॉल साइज है, ऐसा जितना बड़ा नहीं, जैसे ये हमारा मारुबुजू है। देन हमारी एंट्री जो प्रीवियस 2 to 3 कैंडल्स का आई है, जैसे कि इन दिस केस ये हमारा मारुबुजू यहाँ पे बन गया। देन हम ट्रेड प्रीवियस 2 to 3 कैंडल्स का जो हाई है उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। जब ये प्रीवियस 2 to 3 कैंडल्स का हाई को ब्रेक कर देगा देन हम ट्रेड में एंट्री ले लेंगे। मारुबुजू की ओपनिंग प्राइस हमारा स्टॉप लॉस हो गया, इससे 5 to 10 पॉइंट्स नीचे हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे। अगर हम इसे स्टॉक में देख रहे हैं तो हमारा नाउ लेट डिस्कस टारगेट्स। अगर हम इसको स्टॉक में देख रहे हैं तो हमारे टारगेट्स क्या होंगे? नाउ
इन स्टॉक्स our first target is 0.7%। जो स्टॉक है लेट्स से रेट हमारा 1.2 का होगा, 0.25। एंड थर्ड हमारा 1.5 का, यानी इट इज 2% 20 रुपीज। नाउ ये हमारा हो गया कि हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसे इसको ट्रेड करेंगे। नाउ डिस्कस 15 मिनट टाइम फ्रेम हाउ वी कैन ट्रेड मारुबुजू। In 15 minutes there is a minimum 4 to 5 कैंडल का डाउन ट्रेंड होना चाहिए अपना, 4 to 5 कैंडल का डाउनफॉल। अगर हम इसे बैंक निफ्टी में देख रहे हैं तो एटलीस्ट 300 पॉइंट का डाउनफॉल हो तो बेस्ट वर्क करेगा। 300 से ज़्यादा हो तो वेल एंड गुड, बट मिनिमम 300 पॉइंट्स का डाउनफॉल हो देन हमारा ये बुलिश मारुबुजू फॉर्म्स। एंड सेम अगर यहाँ पे हमारी बुलिश मारुबुजू की कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई है और उसने प्रीवियस 2 to 3 कैंडल्स को अपने अंदर एंगल्फ कर लिया है तो हमारी एंट्री बुलिश मारुबुजू का जैसे ही हाई के ऊपर ट्रेड करने लगेगा 1 मिनट के लिए, देन हम अपनी एंट्री बना लेंगे। और बैंक निफ्टी में हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 80 to 100 पॉइंट्स, सेकेंड टारगेट होगा 150 पॉइंट्स एंड सेकेंड टारगेट होगा 200 to 220। ये 3 अपने टारगेट होंगे। एंड स्टॉप लॉस वही है कि भाई स्टॉप लॉस हमारा जो मारुबुजू है इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा और स्टॉप लॉस को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। अगर स्टॉप लॉस के नियर आता है तो हम स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, वरना यहाँ से काफ़ी स्पीड से काफ़ी फास्टली नीचे मूव करेगा। एंड आफ्टर जब हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो जाता है विच इज 80 to 100 पॉइंट्स, लेट्स assume we enter in a trade and our first target is this। after first target we enter 70 to 80% प्रॉफिट, यहाँ पे हमें बुक कर लेंगे। अगर यही है कि ऐसे प्रॉपर ग्रीन कैंडल्स के साथ ही मोमेंटम में ऊपर जा रहा है तो हम होल्ड कर लेंगे। अगर यहाँ पे ये स्मॉल कैंडल्स और बीच में कोई भी इनडिसीजन कैंडल बन रही है, रेड कैंडल्स बीच में आ रही हैं, तो हम फर्स्ट टारगेट के बाद अपना 70 to 80% प्रॉफिट बुक कर लेंगे और 20% को कंटिन्यू करेंगे। और फर्स्ट टारगेट हिट करने के बाद लेट्स से दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट एंड आफ्टर फर्स्ट टारगेट इट स्पेंड सम टाइम, या लाइक यहाँ पे कोई रेंज बना रहा है और रेंज बना के नीचे ब्रेक कर रहा है तो हम यहाँ पे अपना 100% ही बुक कर लेंगे, क्योंकि अब यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा है। और यहाँ से 20% जो बचा था हमारा, अगर इसको ऊपर ब्रेक करता है देन हम सेकंड और थर्ड टारगेट के लिए जाएंगे, वरना हम 100% यहीं पे बुक कर लेंगे। नाउ वी डिस्कस इन डेली टाइम फ्रेम हाउ टू ट्रेड बुलिश मारुबुजू इन डेली टाइम फ्रेम। In daily time frame there is a continuously 4 days downfall in a stock। 4 days का कंटिन्यूसली डाउनफॉल होना चाहिए और इनके बीच में कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं होनी चाहिए।
जो 4 डेज का डाउनफॉल है प्रॉपर रेड कैंडल्स के साथ होना चाहिए। 4 डेज का प्रॉपर डाउनफॉल, देन मारूबुजू मीन्स मारूबुजू और हमारे यहाँ पे मारूबुजू बन गया। देन वही है कि भाई अगर ये बहुत बहुत बड़ी कैंडल बनी है मारूबुजू की प्रीवियस 2 to 3 कैंडल्स को इसने टेंथ एंगल किया है, तो हम मारूबुजू की हाई प्राइस के ऊपर जैसे ही ट्रेड करने लगेगा एंट्री कर लेंगे और स्टॉप लॉस मारूबुजू इन नीचे 5 to 10 पॉइंट्स का लगा लेंगे इन बैंक निफ्टी और इन स्टॉक लाइक 1 रुपी और 2 रुपी का जो मारूबुजू है उसके नीचे 1-2 रुपीज का लगा लेंगे स्टॉप लॉस। एंड व्हेन मारूबुजू लेट्स से जो ये यहाँ पे मारूबुजू की कैंडल है वो छोटी कैंडल बनी है हमारी, लाइक ऐसे छोटी कैंडल बनी है, तो हमारी जो प्रीवियस 2 to 3 कैंडल्स हैं उनके हाई के ऊपर जैसे ही सस्टेन करने लगेगा ये, देन हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और ये जो मारूबुजू आफ्टर मारूबुजू जो ये प्रीवियस कैंडल्स हैं ये सेकंड फर्स्ट या सेकंड कैंडल में ब्रेक कर देना चाहिए। सम कंडीशंस यहाँ पे कुछ कंडीशन बता देता हूँ आपको कि भाई जो हमारा मारूबुजू बना है ये इसकी फर्स्ट कैंडल देन ये सेकंड कैंडल, ये 2 कैंडल्स में प्रीवियस जो कैंडल्स है ना 1 या 2 कैंडल्स का जो हाई है वो ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर ये 2 कैंडल्स से ज़्यादा में लेफ्ट से 3-4 कैंडल्स में ब्रेक हो रहा है देन हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम सेकंड या फर्स्ट या सेकंड कैंडल में अगर इस कैंडल्स के हाई को ब्रेक कर रहा है तो हम ट्रेड करेंगे, थर्ड या फोर्थ हम ट्रेड नहीं करेंगे। नाउ लेट डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ मारूबुजू। लेट्स सी इन IRCTC। मैंने पहले ही कुछ मारूबुजू को आइडेंटिफाई कर रखा है। नाउ लेट डिस्कस इन दिस केस as you can see there is a downtrend. In this case you can see there is a downtrend। एक बात बताई थी मैंने कि भाई लगातार 4 कैंडल्स का डाउन हुआ तो हम देखेंगे इन दिस केस कंटिन्यूसली तो 3 कैंडल्स का ही डाउनफॉल है, बट ये यहाँ से 200 के समथिंग से 215 के समथिंग से हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रखा है और यहाँ से यहाँ तक नंबर डाउन ट्रेंड है। और देन इसके बाद यहाँ पे हमारा बुलिश मारूबुजू बना और मैंने बोला था कि प्रीवियस 2 to 3 कैंडल्स की हाई को जैसे अगर स्मॉल कैंडल है तो हमारा प्रीवियस 2 to 3 कैंडल्स की हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा देन ये सेकंड कैंडल ये है हमारी, और जैसे ही सेकंड कैंडल की हाई को इसने ब्रेक करा यहाँ पे हमने एंट्री ले ली। एंड देन हमारे स्टॉक का जो भी है फर्स्ट टारगेट था हमारा 0.7%, सेकेंड टारगेट था 1.2% एंड थर्ड टारगेट था 1.5%, फोर्थ टारगेट है हमारा 2% हमारे स्टॉक के यहाँ स्टॉक का कंटिन्यूसली डाउनफॉल ऑफ 1 2 3 4 5 कैंडल्स का कंटिन्यूसली डाउनफॉल आया हमारा। देन हमारा ये मारूबुजू हैपन। और जैसे कि मैंने बताया था कि भाई प्रीवियस हमारी 2 कैंडल्स अगर मारूबुजू की कैंडल छोटी है तो हम एक ही कैंडल उसी कैंडल का हाई पे एंट्री कर लेंगे। अगर हमारी मारूबुजू की कैंडल बड़ी है जैसे कि ये बड़ी है तो हम इसके हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा जैसे ही इसके हाई के ऊपर ट्रेड करने लगेगा देन हम ट्रेड बना लेंगे। और मैंने ये बताया था अगर इसके यहाँ पे मैं बोला था कि अगर
एंट्री के बाद अगर हमारे स्टॉक साइडवेज होता है, साइडवेज होने के बाद अगर वो लोअर रेंज को ब्रेक करता है तो फिर हम स्टॉप लॉस जो हमारी मारूबूजू है उसका नहीं लेंगे, स्टॉप लॉस हमें इस रेंज का ले लेंगे। बट इन दिस केस आफ्टर our entry, stock goes sideways and breaks the upper side. Now stock का फर्स्ट टारगेट अपना 0.7%, देन 1.25%, देन 1.5 एंड देन 2% टारगेट के ट्रेड करेंगे। एल्काइन अमीन में देखेंगे अभी हम। As you can see in this case, there is a downtrend, continuously downtrend. There is a continuously downtrend, and in this case, you can see Marubuju weapons formed, but हमारा यहाँ पे मारूबुजू एक्टिव ही नहीं हुआ। एक्टिव होने के लिए क्या था, या तो हमारा इस मारूबुजू का दो जो हाई लेवल है उसके ऊपर ट्रेड करे, ये इसको इसके ऊपर ट्रेड ही नहीं करा तो हमारा यहाँ पे मारूबुजू एक्टिव ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मारूबुजू एक्टिव नहीं हुआ। तो फिर मैंने ये बोला था कि भाई प्रीवियस कैंडल का 2 to 3 कैंडल्स हैं जो उनका उसके ऊपर ट्रेड करे। बट ये बोला था कि भाई अगर मारूबुजू कैंडल काफी बड़ी है तो उस कैंडल के हाई के ऊपर जो प्रीवियस कैंडल अगर एंगल हो रही है तो मारूबुजू की कैंडल के ऊपर जब सस्टेन करेगा तब हम एंट्री करेंगे। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Let's take example here. There is a downtrend 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on downtrend. In this case you can see Marubozu formed, एंड मैंने क्या बोला था कि डाउन ट्रेंड का सबसे लोवेस्ट पॉइंट नहीं होगा तो भी हम ट्रेड करेंगे। ये डाउन ट्रेंड का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है जो ये डोजी कैंडल है, बट मारूबुजू हमारा यहाँ पे फॉर्म्ड हुआ है तो मैंने बोला था तब भी ट्रेड करेंगे अगर मारूबुजू डाउन ट्रेंड का सबसे लोवेस्ट पॉइंट नहीं है। और एंट्री कहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला था कि भाई एंट्री कब करेंगे जब या तो मारूबुजू कैंडल बहुत बड़ी है उसकी के हाई के ऊपर ट्रेड करेगा तो एंट्री करेंगे, या प्रीवियस 3 कैंडल्स। सो इन दिस केस यू कैन सी प्रीवियस 3 कैंडल्स एंड मारूबुजू कैंडल्स है ऑलमोस्ट सेम प्राइस। तो जैसे इसके ऊपर ट्रेड करेगा हम एंट्री कर लेंगे और हमारे टारगेट्स जैसे जहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था कंप्लीटली इसने कवर कर लिया। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। बिरला पॉल। In this case you can see there is a continuously downtrend and bullish Marubozu happens, and also 1 2 3 कैंडल्स के हाई को जैसे ब्रेक करा देन हमारे टारगेट शिट। You can see here also 1 2 3 4 5 6 7 to 8 डेज का डाउन ट्रेंड है यहाँ पे हमारा। देन हमारा बुलिश मारूबुजू फॉर्म्ड एंड प्रीवियस 2 to 3 यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। आफ्टर एंट्री भी इसने रीटेस्ट करा, देन यहाँ पे एक रेंज बनाई, साइडवेज हो गया ये, साइडवेज के बाद इसने ऊपर ब्रेक करा तो हमारे टारगेट सेट हो गया। अगर इसके बाद ये यहाँ पे नीचे ब्रेक करता तो हम मारूबुजू कल स्टॉप लॉस नहीं लेते तो हम इसी रेंज का स्टॉप लॉस ले लेंगे और देन ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। इससे हमारा स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा हो जाएगा। और इसको ऊपर ब्रेक करा देन हमारा जितना भी स्टॉक हो उसका 0.7 फर्स्ट टारगेट 1.2
1.2 सेकेंड टारगेट है, देन 1.5 थर्ड टारगेट है और 2.0 ये परसेंटेज, इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, यानी 500 का 0.7% कितना होगा, वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। नाउ वी डिस्कस इन बैंक निफ्टी। हम बैंक निफ्टी में भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि भाई बैंक निफ्टी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे कि भाई पुलिस मारूबुजू को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। You can see there is a continuously downfall of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैंडल्स का कंटिन्यूसली डाउनफॉल आया हमारा। देन उसके बाद हमारा बुलिश मारूबुजू बना। आफ्टर that bullish मारूबुजू forms and we enter previous 2 कैंडल्स के हाई पे। जैसे इसने प्रीवियस 2 या 3 कैंडल्स 1 2 3 ये सेकेंड और थर्ड कैंडल का टारगेट मतलब ओपनिंग प्राइस सेम ही है, तो हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। जैसे इसके ऊपर निकलेगा हम ट्रेड कर लेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8200 पॉइंट, सेकेंड टारगेट होगा 142 160, सेकेंड टारगेट होगा 200 टू 220। आफ्टर our entry there is a sideways area and after that our first target here is our entry 46 128, then our first target is at least 100 point 46 to 28, as you can see 46 first target here complete and second and third both target hit in this case. Now let's discuss another example. बोला था 4 to 5 candles, but in this case you can see there is a continuously 1 2 3 4 5 candle, but you can see 47 522 47 200, यानी मैंने बोला था 300 पॉइंट का होगा, ये 300 पॉइंट के समथिंग यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट आया हमारा। देन उसके बाद हमारा मारूबुजू फॉर्म्स एंड मैंने बोला था अगर मारूबुजू कैंडल बड़ी है तो हम इसी के ऊपर ही एंट्री ले लेंगे, इसके ऊपर। के बाद ये थोड़ी देर के लिए साइडवेज हुआ। इन दिस केस हमारे यहाँ स्टॉप लॉस ये था अगर ये साइडवेज नहीं होता, बट आफ्टर एंट्री दिस इज साइडवेज। अगर साइडवेज के बाद अगर ये इस रेंज के नीचे ट्रेड करता तो हम अपनी ट्रेड को यहीं पे एग्जिट कर लेते, बट एग्जिट करने इसने हमें मौका ही नहीं दिया और ऊपर की तरफ ब्रेक करा और हमारे फर्स्ट सेकंड 80 and then 160 then 220 टारगेट्स आ गए हमारे वन वे। नाउ डिस्कस लेट्स another case. There is a continuously downfall 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल का डाउनफॉल हुआ हमारा एंड यहाँ पे हमारा बुलिश मारूबुजू फॉर्म्स। आफ्टर बुलिश मारूबुजू फॉर्म्स जैसे कि हम बुलिश मारूबुजू के ऊपर ट्रेड करेंगे यहाँ पे, उसके बाद हमारी एंट्री के बाद ये साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद जैसे ये इस रेंज को ब्रेक करेगा ना तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे हमारा इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और ये देन ये देखो यहाँ से अगर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है तो मैं इसलिए बोल रहा था कि स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, अगर नहीं करेंगे तो इसके बाद स्टॉप यहाँ के बाद ये बहुत ही फास्ट नीचे मूव करेगा। 1 2 3 4 5 6 कैंडल का देन हमारा फिर से डाउनफॉल आया, देन फिर से बना हमारा
एंड इसी के ऊपर मैंने बोला था एंट्री कर लेंगे, या ये भी छोड़ो, अगर हम थर्ड कैंडल पे भी एंट्री करते हैं, लेट्स सी, ये थर्ड कैंडल ये हुई हमारी, यहाँ पे एंट्री करी हमने 46,103, देन हमारा फर्स्ट टारगेट था 80 पॉइंट, 46,103 पे एंट्री करी थी हमने, देन फर्स्ट टारगेट होना चाहिए हमारा 46,200 के समथिंग। फर्स्ट टारगेट हमारा है, उसने हिट करा विच इज 80 to 100 पॉइंट्स। आफ्टर फर्स्ट टारगेट मैंने बोला था यहाँ पे हम 80% प्रॉफिट अपना बुक कर लेंगे, तो 80% ये साइडवेज हो गया। जैसे ही साइडवेज होने के बाद इसको नीचे ब्रेक करेगा, हम अपना 100% बुक कर लेंगे। जो 20% था हम उसको 100% बुक कर लेंगे। अगर इसको ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम 20% के साथ अपने नेक्स्ट टारगेट के साथ आते हैं। और जैसे देखोगे आप, जैसे इस रेंज को ब्रेक करा, बहुत फास्टली नीचे आए। जैसे मैंने बताया है कि भाई इस केस में हम स्टॉप लॉस को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, अगर नहीं करोगे तो हैवी लॉस हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि स्टॉप लॉस के बाद ये बहुत ही फास्ट मूव करेगा डाउन साइड। अगर स्टॉप लॉस से हमारा हिट हुआ तो बहुत ही फास्टली मूव करेगा ये। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। In this case, you can see close Marubozu formed. There is a downtrend of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candles. Then यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मारुबुजू बना, और जैसे ही मैंने बोला था प्रीवियस 3 कैंडल्स या मारुबुजू के ऊपर जैसे ही ट्रेड करेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ से जैसे ही निकला तो बहुत ही क्विक मूव अपने फर्स्ट साइड थर्ड टारगेट बिल्कुल क्विक आए हैं यहाँ पे। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पे देख सकते हैं देयर इज अ डाउनफॉल, देन बुलिश मारूंगा जो हैपेंस, एंड मैंने बोला थर्ड कैंडल यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। अब एंट्री करी हमने, देन हमारा यहाँ पे साइडवेज हो गया। जैसे ही साइडवेज जोन को ऊपर ब्रेक करा तो हमारे टारगेट आ गए। अगर ये नीचे ब्रेक करता तो हम मारूबुजू की जगह यहीं पे अपनी स्टॉप लॉस को काट देते, ट्रेड को काट देते हम यहीं पे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल्स। As you can see in 5 minute time frame, there is a डाउनफॉल था, देन यहाँ पे हमारा साइडवेज हुआ, देन फिर से हमारा डाउनफॉल आया। इस डाउनफॉल के बाद ये वो बुलिश मारूबुजू बना है यहाँ पे, वो काफ़ी बड़ी कैंडल है बुलिश मारूबुजू की। जैसे ही इस बुलिश मारूबुजू के ऊपर ये ट्रेड करने लगेगा, यानी इसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा, ये इस पर ट्रेड करने लगा, देन ये नीचे आया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे है 44,927। ये 50% इसने इसको रीटेस्ट करा, और देन हमारा आफ्टर एंट्री 45,170 147 टू ये गया हमारा 45,352। यानी हमारा दो टारगेट, फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट इसने वन वे अचीव करा। देन हम यहाँ पे अपना 80% तो मैंने बोला था बुक कर लेंगे। देन अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो हम पूरा 100% ही बुक कर लेंगे। Now let's discuss one more case. बना 7 to 8 कैंडल्स का, देन हमारा बुलिश मारूबुजू बना, और हमने इसी के ऊपर ट्रेड ले लिया, और इसने ये साइडवेज एरिया क्रिएट करा, और इसमें इसको नीचे ब्रेक करा, तो यहीं पे हमने एग्जिट ले लिया। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ की जगह यहीं पे आ गया। Now in this case you can see there is a continuously downfall,
and here bullish Marubozu forms and previous can मतलब previous 2 to 3 कैंडल्स हमने यहाँ पे एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद इसने फर्स्ट टारगेट जो था अपना यहाँ पे एंट्री हुई हमारी 44,702 देन और फर्स्ट टारगेट इट 47,883 यानी हमारे फर्स्ट एंड सेकंड दो टारगेट हिट करा इसने। देन इसने एक रेंज बनाई यहाँ पे ये रेंज बनाई और इसको नीचे ब्रेक कर दिया यहाँ, तो बोला था मैंने 100% बुक कर लेंगे। देन हमने यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर दिया एंड एग्जिट करने के बाद ये तो रिवर्स हुआ। देन इसने फिर से मारूबूजू बनाया एंड जैसे ही फिर से मारूबूजू बनाया इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करा। नाउ फिर से गोज अप आवर target it. Now we discuss most of the examples here. This is our bullish Marubozu. Now you can like, share, comment